Hello friends, I am Dr. Rupa Gupta. In today's video, I am going to explain form tag. It is an important tag of HTML and it is the best example of container tag. So let us start with what is form tag. A form is simply a collection of fields of information. These fields of information come in many different varieties such as text boxes, radio, buttons, combo box and other element. So, hypertext markup language is only responsible for a few specific roles with forms. The rest of the job is handled by the browser, the web server and a custom program that you must ensure is in place and working करेक्टली। HTML में फॉर्म टैग बनाना बहुत ही आसान होता है, जिसमें जैसे कि हमने देखा इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन होते हैं, कॉम्बो बॉक्स होते हैं और अदर एलिमेंट्स भी होता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक रोल्स ही होते हैं जो हमें फॉर्म में हम उसे फिल्ड कर सकते हैं और जो अदर वर्क होता है वो ब्राउजर और वेब सर्वर के द्वारा हैंडल किया जाता है। सो हियर्स how the tasks are broken down. Hypertext markup language element are used within the form element to create and name the form controls, format their appearance and behavior and determine default values. An attribute in the form element tells the browser and the web server what program will process the form information. The browser displays the form and allows the server to fill it out, collects the information and sends it to the web server. Web server sends the information to the indicated program and the specific program processes the form information and usually display a new web page when it's done. So this is the structure of form tag. So ये form tag का structure दिख रहा है। इनपुट एलिमेंट का यूज करके हम फॉर्म में नेम दे सकते हैं, मिडल नेम दे सकते हैं, सरनेम लिख सकते हैं, ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं। जो भी कंटेंट एक फॉर्म बनाने के लिए एसेंशियल होता है हम इनपुट में उसे लिख सकते हैं। दैट इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा टेक्स्ट लाइक नेम, वैल्यू, लेंथ, रीड ओनली साइज होनी चाहिए इसकी। इसमें हम पासवर्ड भी दे सकते हैं लाइक चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रिसेट। यहां भी हम नेम एंड वैल्यूज दे सकते हैं। नाउ अनदर पार्ट ऑफ फॉर्म इज अ सिलेक्ट। इसमें अलग अलग तरह के हम ऑप्शंस दे सकते हैं, अल्टरनेटिव्स दे सकते हैं जिसमें वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और वो फॉर्म में डिस्प्ले किए जा सकते हैं। अनदर इज अ टेक्स्ट एरिया जिसमें हम नेम, वैल्यू, कलर्स और रोज के थ्रू इसे इंडिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्म। सो फॉर्म एलिमेंट एंड इट्स एट्रीब्यूट। फॉर्म एलिमेंट क्या होता है, इसके एट्रीब्यूट्स, इसके घटक कौन कौन से होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। द फॉर्म एलिमेंट is a block level element that creates a form area, जिसमें हम form area को create कर सकते हैं। The form elements, that is opening tag of form and closing tag of form. So form tag contain the form's control along with other text and HTML element. Even though you cannot nest a form inside another forms. So using method and action attribute. There are two commonly used value for the method attribute, that is get and post. So what is get? The default value is a get. Get value added information in address part, but post is a hide the information in एड्रेस बार। सो गेट में क्या होता है,
गेट में ये बाय डिफॉल्ट होता है, गेट में हम जो भी वैल्यू डालते हैं वो एड्रेस बार पर अपीयर होती है, लेकिन जैसे ही हम पोस्ट वैल्यू को यूज करते हैं तो ये एड्रेस बार से हाइड हो जाती है. दिस इज द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द गेट एंड द पोस्ट एट्रीब्यूट. एक्शन, it take value of other page. After sending information to web server, this page is called action. So this is the example of this form tag. Like enter the name, enter the password, gender, whether it is a male or female, hobbies like reading or working on computer, then some options are given like check, submit button, reset, etc. Let us see how to prepare a form. Just imagine, just consider you have opened your text editor, that is Notepad, and you have written these tags on Notepad. Like HTML टैग से हम स्टार्टिंग करते हैं, देन हेड टैग को लिखते हैं, हेड में टाइटल टैग लिखते हैं. मान लीजिए हमारा टाइटल है अ टैग्स, टाइटल टैग को क्लोज करते हैं, हेड टैग को क्लोज करते हैं. अब बॉडी टैग से स्टार्टिंग करते हैं और बॉडी टैग में मान लीजिए हम हेडिंग नंबर 2 में अप्लाई करते हैं. सो अब फॉर्म की स्टार्टिंग होती है, फॉर्म एलिमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं. सो फॉर्म नेम like F1, method is a post. Two methods are given like post and get. Here we are using post method. Action, just imagine thank you .asp. इस एंगल को क्लोज करते हैं. इस फॉर्म में हमें जो नेम देना है दैट इज इनपुट टाइप करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, नेम इक्वल्स टू T1, मैक्सिमम लेंथ इक्वल्स टू लाइक 8. अब यहां हमें स्पेस लेना है तो ब्रेक टैग को यूज करते हैं. नाउ अनदर इज, अगर आपको फॉर्म में पासवर्ड एंटर करना है तो इनपुट में हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू इन डबल इन्वर्टेड कॉमा पासवर्ड, नेम इक्वल्स टू P1. इसकी मैक्सिमम लेंथ 4 लेते हैं. अगेन हमें यहां पे स्पेस लेना है तो ब्रेक टैग को लिखते हैं जेंडर. सो जेंडर में मेल फीमेल का जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था इसकी प्रीवियस स्लाइड में, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, नेम R1, एंगल को क्लोज करते हैं. M इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो डबल इन्वर्टेड कॉमा नेम R1, एंगल को क्लोज करते हैं. यहां फीमेल, F स्टैंड फॉर फीमेल, यहां हमें स्पेस देना है इसलिए हमने ब्रेक टैग को यूज किया है, दैट इज BR टैग. हॉबीज, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, नेम इक्वल्स टू C1, एंगल को क्लोज करते हैं. लाइक हमारी हॉबीज है रीडिंग एंड सर्फिंग ऑन कंप्यूटर. सो राइट हियर रीड, इनपुट टाइप में चेक बॉक्स लिखते हैं, नेम इक्वल्स टू C2, एंगल को क्लोज करते हैं. सेकेंड हॉबी हमारी जैसे कि सर्फिंग ऑन कंप्यूटर, सो राइट हियर कंप्यूटर, यहां हमें स्पेस देना है इसलिए हमने ब्रेक टैग को अगेन लिखा है. नाउ द अनदर इज, फॉर्म में अब हम बटन वैल्यू देना चाहते हैं जिसे क्लिक कर सके. सो एंगल में हम इनपुट टाइप लिखते हैं इक्वल्स टू बटन डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड, वैल्यू इक्वल्स क्लिक, एंगल कंप्लीट. नाउ एंगल इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, एंगल क्लोज्ड. अगेन इनपुट टाइप में से रिसेट लिखते हैं, एंगल क्लोज. फॉर्म टैग को क्लोज करते हैं, हेडिंग 2 को क्लोज करते हैं. ये पूरा वर्किंग हमने बॉडी टैग में किया था, बॉडी टैग से इसकी स्टार्टिंग हुई थी इसलिए बॉडी टैग से इसे क्लोज करते हैं, HTML टैग को क्लोज करते हैं.
तो प्रीवियस स्लाइड में आप ये जो फॉर्म देख रहे हो ये इसी का रिजल्ट है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल. नाउ आप ये जो स्लाइड देख रहे हो लाइक इसमें सिंगल सिलेक्शन दिया है, देयर आर सम ऑप्शंस आर गिवन, लेकिन उसमें से आप एक ही सिलेक्शन कर सकते हो. मल्टीपल सिलेक्शन एज अ लीस्ट बॉक्स, यहां मल्टीपल ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हो. लीस्ट दी जाती है, उस लिस्ट में से हम मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं. विथ साइज एट्रीब्यूट यहां दिया गया है. तो आइए देखते हैं इस एलिमेंट्स को हम नोटपैड में किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो HTML टैग से हम स्टार्ट करते हैं. देन हेड टैग लिखते हैं. हेड में टाइटल टैग लिखते हैं. मान लीजिए हमारा टाइटल है A टैग्स. टाइटल टैग को क्लोज करते हैं, हेड टैग को क्लोज करते हैं. अब बॉडी टैग से स्टार्टिंग करते हैं. बॉडी टैग में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारे ब्राउजर पर अपीयर होता है, दिखता है. तो बॉडी टैग में हम मान लीजिए हेड 2 लिखते हैं. अब इसमें हमें फॉर्म बनाना है. सो लेट अस स्टार्ट विथ फॉर्म टैग. फॉर्म नेम इक्वल्स टू F1. मेथड इज अ पोस्ट. एक्शन इक्वल्स टू थैंक यू डॉट ASP. एंगल को क्लोज करते हैं. सिंगल सिलेक्शन. सो सिंगल सिलेक्शन के लिए हम एंगल में सिंगल नेम लिखते हैं इक्वल्स टू S1. एंगल को क्लोज करते हैं. मान लीजिए यहां हम 4 ऑप्शंस लेते हैं लाइक ऑप्शन 11, ऑप्शन 12, ऑप्शन 13, ऑप्शन 14. इस तरह से हमने एंगल्स में लिखा. सिलेक्ट एंगल को क्लोज करते हैं. सिलेक्ट टैग को क्लोज करते हैं. इसके बाद हमें स्पेस देना है तो हमने BR टैग लिखा, दैट इज ब्रेक टैग. अब सेकेंड फॉर्म में हमने ऑप्शन देखा कि मल्टीपल सिलेक्शन एज अ लीस्ट बॉक्स. सो इसके लिए हम अगेन सिलेक्ट टैग से स्टार्टिंग करते हैं. सो सिलेक्ट नेम इक्वल्स टू S2. यहां हमने मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो एंगल को क्लोज करेंगे. मान लीजिए यहां हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 11, ऑप्शन 12, ऑप्शन 13, ऑप्शन 14. अब सिलेक्ट टैग को क्लोज करते हैं. इसके बाद अगेन हमें ब्रेक देना है, स्पेस चाहिए तो ब्रेक टैग को यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज विथ साइज एट्रीब्यूट. ये हमारा अनदर ऑप्शन है. अगेन हम सिलेक्ट टैग से स्टार्टिंग करते हैं. सो एंगल सिलेक्ट नेम इक्वल्स टू S2. साइज इक्वल्स टू 2. एंगल को क्लोज करते हैं. यहां भी हम 4 ऑप्शंस ले रहे हैं लाइक ऑप्शन 11, ऑप्शन टैग 12, ऑप्शन टैग 13, ऑप्शन टैग 14. इस तरह से 4 ऑप्शंस हमने लिए हैं. अब सिलेक्ट टैग से स्टार्टिंग हुई थी इसलिए सिलेक्ट टैग को यहां क्लोज करते हैं. फॉर्म टैग को क्लोज करते हैं ताकि हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाए. एंड ये पूरा वर्किंग हमने H2 में किया था इसलिए H2 टैग को हम क्लोज करते हैं. बॉडी टैग को क्लोज करते हैं एंड फाइनली HTML टैग को क्लोज करते हैं. सो इसके पहले की स्लाइड में लाइक इसमें हमने देखा कि सिंगल सिलेक्शन, अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं लेकिन उन ऑप्शंस में से हम एक ऑप्शन ही सिलेक्ट कर सकते हैं. सेकेंड हमने देखा कि मल्टीपल सिलेक्शन एज अ लिस्ट बॉक्स. इसमें अलग अलग तरह के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आप ये 4 ऑप्शंस में से जो भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस लगते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट हमने देखा विथ साइज एट्रीब्यूट. इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए थे और साइज के अकॉर्डिंग हम एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर सकते हैं. फ्रेम सेट टैग. नाउ इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर्म टैग. ये भी कंटेनर टैग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है. फ्रेम सेट टैग्स. सो फ्रेम सेट टैग इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंटेनर टैग. इट डिवाइड्स द ब्राउजर विंडो इनटू फ्रेम्स. इसमें ब्राउजर विंडो को छोटे छोटे हिस्सों में बाइफरकेट किया जाता है. देखते हैं इसके एट्रीब्यूट्स क्या है. सो फ्रेम सेट कैन टेक द रोज और कॉलम्स एट्रीब्यूट बट not both at the same time. The border color attribute can set the color of a frame's border. Note, here it is an important note. Frame set tag
only breaks up the screen into multiple regions. We need to use the frame tag to populate each frame with content. Frames. What do you mean by frames in frame tag? So with frames, one can display more than one HTML document in the same browser window. Each hypertext markup language document is called a frame, and each frame is independent of the others. इसमें अलग अलग तरह की फ्रेम्स होती है, लेकिन हर फ्रेम दूसरी फ्रेम से अलग होती है। वे एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, वे स्वतंत्र होते हैं। एक फ्रेम का इंपैक्ट दूसरे फ्रेम पर नहीं होता है। सो देखते हैं कि फ्रेम टैग यूज करने से हमें कौन कौन से डिसएडवांटेज हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, HTML में हम अलग अलग फ्रेम्स बना सकते हैं, लेकिन इन फ्रेम्स को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है। द वेब डेवलपर मस्ट कीप ट्रैक ऑफ मोर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज इट इज डिफिकल्ट टू प्रिंट द एंटायर पेज। अगर हम इस फ्रेम्स की प्रिंट लेना चाहते हैं तो एक कंप्लीट पेज पर लेना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। सो फ्रेम टैग, it is a stand-alone tag. Places content into a frame. आइए देखते हैं फ्रेम टैग के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। फ्रेम बॉर्डर। फ्रेम बॉर्डर, फ्रेम को बॉर्डर देने के लिए हम फ्रेम बॉर्डर का यूज करते हैं। अगर इसे टर्न ऑन करना है तो सेटिंग में 1 पर क्लिक करते हैं। सो सेटिंग इट टू 1 टर्न्स ऑन द फ्रेम्स बॉर्डर. Setting it to 0 turns them off. SRC, that is image. So SRC tells the browser the URL of the HTML file to load into the frame. It is a required attribute of the frame tag. Margin height. Margin height tag क्या बताता है ये attributes? It specifies the size in pixels of the top margin of the frame. जब फ्रेम की टॉप मार्जिन को बताना हो उस समय मार्जिन हाइट एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है और ये पिक्सेल्स में बताई जाती है इसकी साइज। मार्जिन विड्थ, इट specifies the size in pixels of the left margin of the frame. Now name attribute. It gives the frame a unique name so it can be targeted by other tags. No resize. What is no resize attribute? It suppresses the user's ability to drag and drop a frame border in a new location. इसकी वजह से जो यूजर होता है वो ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन को यूज कर सकता है और नए प्लेस पर बॉर्डर फ्रेम कर सकता है। स्क्रोलिंग। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्रोलिंग? इट कंट्रोल्स presence of scroll bar on the frame. Another is setting it to yes makes the browser always put scroll bars on the frame. अगर यहाँ पे स्क्रोलिंग में अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं लाइक yes, no and auto. अगर हम yes ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो ये S ऑप्शन के थ्रू हम फ्रेम में स्क्रोलिंग बार को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम no ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो setting it to no suppresses the scroll bar, and another is setting it to auto enables the browser to decide if scroll bars are needed. अगर जरूरत है तो उसके अकॉर्डिंग उसका यूज किया जाता है। No frames tag. It is an example of container tag. So no frame tag हमें क्या बताता है? It provides an alternative layout for browsers that cannot process frame. It is valid only between frame set tag and closing of frame set tags because it is a best example of container tag क्योंकि इसकी opening भी होती है
और इसकी क्लोजिंग भी होती है। तो हम कंटेनर टैग किसे कहते हैं? हम कंटेनर टैग उसे कहते हैं जिस टैग का ओपनिंग भी होता है और जिस टैग का क्लोजिंग भी होता है। आई फ्रेम टैग, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंटेनर टैग। It places a floating frame on a page. जब पेज पर एक फ्लोटिंग हिलती हुई इमेज बताना हो तब हम आई फ्रेम टैग का यूज करते हैं। इसकी भी स्टार्टिंग होती है, इसकी भी क्लोजिंग होती है, इसलिए ये कंटेनर टैग है। So floating frames are best described as frames that one can place like images. So let us see the attributes of आई फ्रेम टैग। लाइक width, इसकी width क्या होती है? width एट्रीब्यूट के थ्रू हम उस फ्लोटिंग फ्रेम की width पिक्सेल्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। अनदर इज अलाइनमेंट, दैट इज अलाइन। इट वैल्यूज कैन बी टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट और राइट। सो टॉप, मिडल एंड बॉटम मेक टेक्स्ट अपीयर नेक्स्ट टू फ्रेम। एक फ्रेम है, अगर हमें उसे टॉप अलाइनमेंट देना है तो हम टॉप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इफ यू वांट टू गिव सेंटर अलाइनमेंट वी हैव टू सिलेक्ट सेंटर अलाइनमेंट। सो लेफ्ट और राइट फ्लोट्स द फ्रेम इन द लेफ्ट और राइट मार्जिन। हाइट एट्रीब्यूट, हाइट एट्रीब्यूट हमें बताता है, दैट इज इट स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ द फ्लोटिंग फ्रेम इन पिक्सेल्स। Others are frame border, margin height, margin width, name, scrolling and SRC. So, let us see the example of vertical framework. See, this is the example और हम इसका रिजल्ट कैसे पाते हैं। लाइक मान लीजिए आपने नोट पैड ओपन किया, उसमें इस तरह से हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। लाइक HTML टैग से स्टार्टिंग करते हैं, हेड टैग लिखते हैं, टाइटल टैग लिखते हैं। मान लीजिए टाइटल है और टैग्स, टाइटल टैग को क्लोज करते हैं, हेड टैग को क्लोज करते हैं। फ्रेम सेट कलर टैग लिखते हैं। जस्ट इमेजिन इट इज 50% एंगल को क्लोज करते हैं। फ्रेम SRC टैग इक्वल्स टू image.html, एंगल को क्लोज करते हैं। फ्रेम SRC इक्वल्स टू while.html, एंगल को क्लोज करते हैं। फ्रेम सेट को क्लोज करते हैं एंड HTML टैग को क्लोज करते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल फ्रेम्स टैग। नाउ एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्रेम सेट। मान लीजिए आपने अपना नोटपैड ओपन किया, उसमें इस तरह से एलिमेंट्स को कंस्ट्रक्ट किया। अब हमें देखना है कि हॉरिजॉन्टल फ्रेम सेट को कैसे लिखा जाता है, इसके स्ट्रक्चर को। सो HTML टैग से स्टार्टिंग करते हैं, हेडिंग टैग लिखते हैं, टाइटल टैग, मान लीजिए टाइटल है A टैग्स, टाइटल टैग क्लोज करते हैं, हेड टैग को क्लोज करते हैं। सो फ्रेम सेट रोज इक्वल्स टू 50%, एंगल को क्लोज करते हैं। फ्रेम SRC इक्वल्स टू image.html, एंगल को क्लोज करते हैं। फ्रेम SRC इक्वल्स टू while.html, एंगल को क्लोज करते हैं। फ्रेम सेट को क्लोज करते हैं एंड HTML टैग को क्लोज करते हैं। सो ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल फ्रेम सेट का। एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड फ्रेम सेट। मान लीजिए आपने अपना नोटपैड ओपन किया, उसमें इस तरह से एलिमेंट्स को लिखा। सो स्टार्टिंग विद HTML, हेड टैग, टाइटल टैग, A टैग। मान लीजिए टाइटल A टैग्स है, टाइटल टैग को क्लोज करते हैं, हेड टैग को क्लोज करते हैं। सो फ्रेम सेट रोज इक्वल्स टू 20%, 80%, एंगल को क्लोज करते हैं। फ्रेम SRC इक्वल्स टू image.html, स्क्रोलिंग इक्वल्स टू नो। हमने जैसे कि देखा था स्क्रोलिंग में अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं, यस, नो एंड ऑटो। तो यहां पर मान लीजिए हमने नो ऑप्शन को सिलेक्ट किया, एंगल को क्लोज करते हैं।
फ्रेम सेट का कलर लेते हैं 50-50%. फ्रेम src equals to while.html. फ्रेम src equals to image.html. एंगल को क्लोज करते हैं, फ्रेम सेट को क्लोज करते हैं एंड HTML टैग को क्लोज करते हैं. So example of targeting frames with the name attribute, navigation of multiple frame. So इस तरह से आज हमने डिटेल में देखा कि HTML में फॉर्म टैग को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है. थैंक यू.